زندگی میں یہ موتی پروتے جاؤ، زندگی لاجواب ہو جائے گی۔ یہ موتی پروتے جائیں اور سفر آگے بڑھاتے جائیں۔ ہاں ہاں، زندگی بہترین بے مثال ہو جائے گی، ایسی لاجواب، ایسی بے مثال۔ ایک خاندان میرے پاس آیا، پتہ نہیں کہاں نکل گیا میں بات کرتے۔ ایک خاندان آیا، بڑی دولت، دکانیں، مارکیٹیں، زمینیں، بینک، باہر کمانے، باہر سے مال ڈالروں کی شکل میں، فلاں کی شکل میں۔ زندگی تنگ تھے، بڑے پریشان تھے۔ میرے خیال میں جو چند خاندان میں نے پریشان دیکھے ہیں، ان پریشان خاندانوں میں یہ خاندان بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت پریشان خاندان تھا۔ اب یقین جانیے، میں اصل چیز تشخیص ہوتی ہے کہ اس کو پرکھنا ہے۔ میں اپنے علم کا کوئی دعویٰ نہیں کرتا، نہ ولایت کا دعویٰ کرتا ہوں، تو میں اس کو سوچتا رہا کہ یا اللہ مجھ پہ یہ خیر کھول دے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ نا پہلے لوگ قارورہ دکھاتے تھے، حکیموں کے پاس پیشاب لے کے آتے تھے شیشے کے برتن میں، شیشے کی بوتل میں، دور سے دکھاتے تھے اور وہ پیشاب دیکھ کے بیماری کو سمجھ لیتے تھے، صبح کا پہلا پیشاب۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے کہ میں پیشاب میں نے دیکھا پر بیماری سمجھ نہ آئی، پھر میں نے اللہ کا نام، اللہ کی طرف متوجہ ہوا، جیسے ابھی حضرت علی کی دعا سنی، حضرت علی اللہ کی طرف کتنا متوجہ تھے، تو کہا میں نے پیشاب میں ایک شکل بنی ہوئی دیکھا مور ہے، اس نے منہ میں سانپ لیا ہوا ہے، مور ہے، اس نے منہ پہ سانپ لیا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا۔ میں نے کہا تو نے مور کا گوشت کھایا؟ کہہ رہے ہاں۔ کہنے لگا اس نے تازہ تازہ سانپ کھایا تھا، اس کا زہر ہے۔ اچھا مور کی بات بتاؤں، ہمارے ہاں حویلی میں 8 مور ہیں، پر مرا ہوا سانپ نہیں کھاتے۔ کئی دفعہ سانپ مار کے ان کے سامنے ڈالا، وہ نہیں کھاتے، وہ کہتے ہیں اپنی مار کے کھائیں گے۔ ہاں باغ ہے، حویلی ہے، گھر ہے فقیر کا، سانپ وغیرہ نکلتے رہتے ہیں، مرا ہوا سانپ نہیں کھاتے۔ کہا کلام الہی کی برکت سے بوتل کے اندر میں نے عکس دیکھا، اور عکس دیکھا تو سانپ ہے، مور ہے، اس کے منہ میں سانپ ہے، اور کہا کہ پھر میں نے سانپ کے زہر کا جب علاج کیا وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ آج تک ٹھیک نہیں ہوا تھا، کسی دوا سے ٹھیک نہیں ہوا۔ تشخیص، ڈائگنوز۔ تو میرے پاس ایک کیس آیا، میں عرض کر رہا تھا، ان کے پاس دولت، مال، سب کچھ، پر زندگی میں مشکلات اور مسائل، پریشانیاں۔ اب میرے دل میں اللہ نے ایک بات ڈالی، میں نے کہا گھر کے مجھے 3، 5، 7، 9 افراد چاہیے جن کو میں ایک وظیفہ دوں گا، میں خود بھی اللہ سے مانگوں گا، یا علیم علمنی، یا خبیر اخبرنی، یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ۔ وہ ایک چھوٹی سی دعا ہے، جو بندہ سوتے ہوئے اس کی ایک تسبیح پڑھ کے سوئے گا نا، میں کہتا ہوں چند دنوں، چند ہفتوں یا چند سالوں میں زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کے خزانے آنکھوں سے دیکھے گا۔ عجب اس دعا کے اندر تاثیر ہے۔ استخارہ بھی یہ دعا ہے، یہ کام کروں یا نہ کروں، یہ عمل کروں یا نہ کروں، یہ رشتہ کروں یا نہ کروں، یہ سفر کاروبار کروں یا نہ کروں، یہ استخارہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر کشف ہے، سینے کا کشف الصدور، کشف القبور، کشف الورا، ساری کائنات کا اس دعا کے اندر اللہ پردے ہٹا دیتا ہے۔ کشف المحجوب، حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام ہے کشف الحجابوں سے پردے ہٹ گئے، کائنات کی وہ چیزیں میں نے دیکھی جو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اس دعا کے اندر کشف المحجوب ہے، کشف المحجوب ہے۔ میں نے یہ دعا بتا دی،
मैंने कहा 11 दिन पढ़ें, अल्लाह करे 11 दिन में हो जाएगा। किसी को जल्दी, किसी को 11 दिन, किसी को कुछ हफ्ते, किसी को कुछ महीने, कुछ ऐसे। 11 दिन के बाद फिर बुलाया, सबसे पूछा, कुछ नजर, कुछ महसूस, उन्हें कि कुछ नजर नहीं आया। एक ने बताया, उनके घर के एक फर्द ने, हालांकि वो जवान, उसने कहा जी मैंने देखा हमारे दरवाजे के बाहर एक बाबा जी हैं, बैठे कांप रहे हैं। मैं कहा भाई बात आ गई सामने, आपके बड़े या आपसे किसी अल्लाह के वली की तौहीन हुई है। अब सोचें इसको। सोचते सोचते बात निकल आई। उनके गली मोहल्ले में दूर कहीं एक अल्लाह के दोस्त रहते थे, दरवेश रहते थे। उनके एक साहब थे, वो हर वक्त उनकी तौहीन, उन पे एतराज करते रहते थे। आपके मुल्क के सफीर को कोई किसी मुल्क में भेजें, आपके मुल्क के सफीर को किसी मुल्क में भेजें और उस मुल्क के सफीर को वहां मुल्क में कोई तकलीफ पहुंचे, पूरा मुल्क एहतजाज करता है कि वो सफीर नहीं था, हमारे मुल्क का नुमाइंदा था। है और जो अल्लाह के सफीर हैं और उसके हबीब के सफीर हैं। एक बाबा जी थे, उन्होंने दुकान खोली। सुबह सुबह एक फकीर आया। उस दौर में जब एक कौड़ी, एक पाई की 20 कौड़ियां आती थी, कौड़ियां नहीं होती कौड़ियां, ये करेंसी थी, सिक्के थे। क्यों कहते फूटी कौड़ी? ऐसी कौड़ी जो टूटी हुई हो। एक कौड़ी में फकीर राजी होता था और वो मांगने लगा मुझे 1 रुपया दे। एक साहब कहने लगे मैंने रुपए को देखा उस वक्त जब 1929-30 में मोतीलाल का बेटा जवाहर लाल आया। मोतीलाल नेहरू और जवाहर लाल नेहरू, काली इचकन पहनी हुई थी, शेरवानी, लाजवाब घोड़े पे बैठा हुआ था और काली टोपी पहनी हुई थी और अनारकली से गुजरा और हिंदू उसके ऊपर पैसे, रुपए, चांदी के रुपए थे, ऐसे बारिश की तरह बरसा रहे थे। कहा कि जिंदगी में पहली दफा मुट्ठी भर मेरे हाथ में वो पैसे लगे थे। मैं कहता था अल्लाह रोज नेहरू आए, रोज नेहरू आए। अनारकली में घोड़े में जा रहा था और उसके ऊपर पैसों की बारिश थी। तो क्या बात? दुकान खोली, कहा रुपया दे। उसने कहा बाबा अभी तो दुकान खोली है, रुपया मांगता है। नहीं अभी रुपया दे, 1 रुपया लूंगा, अगर नहीं देता तुझे बर्बाद कर दूंगा, सब कुछ खत्म कर दूंगा, तेरी दुकान उलट दूंगा। लोग कहने लगे, मजाक उड़ाने लगे उस फकीर का, मंगते का। मजमा जमा हो गया। फकीर भी अपनी बात पे डटा हुआ था, रुपया लूंगा। फकीर भी मजमे में। एक साहिब नजर आए, कशफुल महजूब, जिनकी आंखों के सामने पर्दे हटे हुए थे। कशफुल महजूब। ये जिन्नात हमें नजर नहीं आते, पर्दे हैं। जादू नजर नहीं आता, पर्दे हैं। जन्नत नजर नहीं आता, आती पर्दे हैं। और अजाब कबर, सवाब कबर नजर नहीं आता, पर्दे हैं। फरिश्ते नजर नहीं आते, पर्दे हैं। जिसके सामने से पर्दे हटते हैं, कायनात का सब कुछ वो आंखों से नजर आता है। एक साहिब नजर आए, दरवेश, देखा मजमा जमाए, हालात को देखा तो पता चला कि एक फकीर है, रुपए का मुतालबा कर रहा। फकीर की तरफ ऐसे नजर डाली ना, ऐसी नजर डाले, तीरे नजर का ये असर जिसको लगा शिकार है। नजर डाली, कहा इसको दे दे, जो कह रहे हो जाएगा। अल्लाह वाले थे, उस दुकानदार ने दे दिया। फकीर गया, उन्होंने कहा हजरत ये मंगता फकीर भिकारी कौड़ी कौड़ी पैसा पैसा मांगता है। और मैं सच है, मैंने इसको देखा है। अब गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा और तवज्जो से। मैंने इसको देखा है, बिल्कुल खाली बर्तन, खाली भांडा,
कुछ भी नहीं इस पे। इसके मुर्शिद को देखा है, वो भी खाली है। इसके मुर्शिद के मुर्शिद, इसके मुर्शिद के खड़े हैं इंतजार में, ये बोले और हो जाए। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा लगता है किसी फकीर की तौहीन हुई है, उसको तलाश करें। तलाश किया तो वो मर गया था। अब मैंने उनको एक तरीका बताया, मैंने कहा 70,000 दफा कलमा पढ़ के उस फकीर को हदिया करें। और वैसे भी एक साहब थे बाबा जी, एक बाबा जी थे, बाबा कादिर बख्श, हमारे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब थे। वो कहते थे मेरी जिंदगी में कोई मुश्किल आती है, मसला आता है, मैं 70,000 दफा कलमा पढ़ता हूं, मसला हल हो जाता है। मुश्किल परेशानी, कहा कि मेरा बेटा लाहौर में फौत हुआ, उसकी मैयत हुई और उसका वजन बहुत ज्यादा है, उनका मोटापा खानदानी है। कहा आया ना, तो कहने लगे बाबा जी बेटा भी उस वक्त 60 से ऊपर का था, बाबा जी 90 से ऊपर से गए हैं। अच्छा, कहा बाबा जी बेटा जो है बहुत वजनी है। कहा मैंने एक कलमे का निसाब और 70,000 दफा पढ़ना कैसे है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये पढ़ना है 100-200 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, 100-200 दफा के बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले। ये 70,000 दफा कलमा पढ़ने को, इसको कहते हैं एक निसाब। ठीक है, समझ आई मेरी बात की ना? तो कहा मैंने अपने बेटे को दिल ही दिल में एक निसाब दे दिया, दिल ही दिल में बेटे को दे दिया, कलमे का निसाब दे दिया। कुछ देर के बाद ना उसको उठा के नहलाने के लिए जब रखने लगे, कहने लगे लोग, कहा मैं सुन रहा था लोगों के तबसरे, उनको पता नहीं है कि बाप ने बेटे को 70,000 कलमे का निसाब दिया, उन्हें पता नहीं है। कहा मैं खुद सुन रहा था लोगों के, कहने लगे पता नहीं आए थे उस वक्त तो एम्बुलेंस से निकाला था तो मैयत उठाई नहीं जाती थी, अब तो फूलों की तरह उठा के यूं रख रहे हैं। हाँ, एक बुजुर्ग थे, कहने लगे मेरे पास एक जवान था, उसको कश्फ होता था, अजीब और गरीब चीजें बताता था। मेरे पास एक जवान था, मुझे शक था पता नहीं अपनी तरफ से ऐसी बातें करता है। एक दफा हम बैठे खाना खा रहे थे, बात सुनने की भी है और ये मोती भी दे रहा हूं, सुनने की भी है। और यही चीज आज आप, ये एक कागज बाहर तकसीम होगा, ये कागज जरूर लेके जाइएगा। क्यों जी, है ना, तकसीम होगा एक कागज, ये आज बाहर तकसीम होगा, ये जरूर हर बंदा लेकर जाए और दूसरों तक भी पहुंचाए, हत्ता कि इसको व्हाट्सएप करके इसकी लोगों दोस्तों तक भी इसको पहुंचाएं। इस कागज में भी ये तोहफा है जो मैं अभी आपकी खिदमत में अर्ज करने लगा हूं। तो बाबा जी कहते हैं कि मैं बैठा खाना खा रहा था, वो जवान भी मेरे साथ बैठा खाना खा रहा था, अचानक उसका सांस फूला, रोने लगा, परेशान हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा मैंने आलम बरज़ख में देखा, आलम बरज़ख में देखा, मौत के बाद की जिंदगी आलम बरज़ख में देखा, मेरी वालदा को अजाब हो रहा है, मेरी वालदा को अजाब हो रहा है। कहा कि मैंने दिल ही दिल में अपने लिए कलमे का निसाब पढ़ा हुआ था, वो निसाब कलमे का उसकी वालदा को हदिया कर दिया, वही वालदा को हदिया कर दी। कहा थोड़ी देर के बाद उसकी सांस ठीक हो गई। कहने लगे चाचा कहीं से कोई नेकी, कोई रहमत, कोई बरकत, कोई अता आई है, अम्मा का अज़ाब टल गया है। कहा इस वाकये के बाद मुझे दो फायदे हुए, एक फायदा तो कलमे के निसाब की तासीर का यकीन हो गया, दूसरा फायदा यह है कि उस जवान का कश्फ सच्चा था, उस जवान का कश्फ सच्चा था। दुनिया में कोई नाराज हो तो उसको हदिये भेजो, तोहफे भेजो, एक तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, फिर तोहफा, और आखिरत का कोई नाराज गया है तो उससे कलमे के निसाबों के हदिये दो। मैंने उनसे कहा ऐसा करो, अब आप समझ आ रही है ना मेरी बात की, कलमे का निसाब मैंने थोड़ा सा खोला है, अब आपको समझ आएगी। मैंने कहा कि उसको कलमे का निसाब दो,
सारा घर कलमा पढ़ो, उठते बैठते वजू बे वजू पढ़ सकते हो, सारा दिन पढ़ो और उनको निसाब कलमे का दो, कम से कम उनको 9 निसाब या 11 निसाब दो, आपके हालात ठीक हो जाएंगे। ऐसे हुआ, ऐसे ही हुआ। कलमे के निसाब दी, खूब निसाब दी। बाबा जी नाराज गए थे अल्लाह के वली, और हम उन्हें आम आदमी समझ बैठे थे। और अल्लाह पाक फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, सुन लेना गौर से अल्लाह वालों, फरमाया जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है, मेरा अल्लाह कहते हैं मेरा उसके साथ ऐलान जंग है, ऐलान जंग है, ऐलान जंग है। अल्लाह के वली से जो मुखालफतें, दुश्मनियां या उनके बारे में बुरा भला, ऐलान जंग है। और ये बताओ, जब अल्लाह किसी के साथ ऐलान जंग करता है, अल्लाह जीतता है या बंदा जीतता है? डाडा जीतता है, कौन जीतता है? अल्लाह जीत जाता है। मेरा उसके साथ ऐलान जंग है। कुछ ही अरसे के बाद उनके हालात बेहतर हो गए। बीमारियां, कैंसर, तकलीफें, मुश्किलात, मसाइल, उलझने, नाकामी ऐसे सुलझना शुरू हो गई, सुलझना शुरू हो गई। हैरान हुए, कहने का क्या था? मैंने कहा एक बद्दुआ ट्रेवल कर रही थी, एक बद्दुआ पीछा कर रही थी, किसी फकीर की बद्दुआ, किसी दरवेश की बद्दुआ थी, अल्लाह के वली की बद्दुआ थी, तुम्हारा पीछा कर रही थी, उसने तुम्हें छोड़ना नहीं था। अब तुम क्या किया? कलमे की तासीर और ताकत बढ़ के उस बद्दुआ का इजाला किया और अल्लाह से उस बद्दुआ के जरिए करके अल्लाह से पनाह मांगी और उस फकीर को हदिया दिया। उसकी बरकत ये हुई कि वो बद्दुआ तुमसे हट गई, उनकी दुआएं शुरू हो गई। यानी हदिया इतना दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया, इतना हदिया दिया कि वो कहने लगे, भाई इतना तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। मैं ये अपने तौर पे कह रहा हूं, बात उनकी बात नहीं, ये मैं अपने तौर पे कह, तुमने मुझे इतना सताया तो नहीं था जितना हदिया दिया। शायद मेरे शौहर 6 माह पहले ऑस्ट्रेलिया गए हैं काम के सिलसिले में, तो उनको वहाँ पर किसी कंपनी ने बुलाया है। हमारी 1 साल की बेटी है। दरअसल हम तीनों ने इकट्ठे ही जाना था, हम तीनों का वीजा आया हुआ है, लेकिन मेरे शौहर पहले चले गए। उन्होंने कहा कि 3-4 महीने वहाँ जाके फिर हमें बुला लेंगे कि कोई फ्लैट वगैरह ले लें तो फिर, लेकिन अब 7 महीने हो गए हैं, तो उनका वहाँ पे कोई वो जाके उनका पता चला कि वहाँ महंगाई बहुत है, अखराजात बहुत है, तो वो अपनी फैमिली को अभी नहीं वहाँ बुला सकते। जी। तो अभी वो कहते हैं कि उनकी अभी तनख्वाह भी वहाँ के हिसाब से कम है कि वो अपनी फैमिली को मतलब हमें बुला लें। तो वो अब ये कह रहे हैं कि वो फिर अब 4-5 साल लगा के वापस आएंगे। तो आप मुझे कोई वजीफा दे दें कि हमारे लिए कोई आसानियां हो जाए, हमारे लिए कोई रस्ते खुल जाए। आपके मियाँ वजीफा करेंगे? अक्सर खवातीन करती हैं, मर्द नहीं करते। मैं करूंगी। आप ये 2 अमल अगर यकीन, ताकत, ध्यान से कर लें, इंशाअल्लाह गैबी निज़ाम बरकतों, रहमतों का और गैबी निज़ाम अल्लाह के फजल का आपके साथ होगा और इंशाअल्लाह रहमतें और बरकतें होंगी। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील या वारिसो या नसीरो, इसको बहुत ज्यादा पढ़ें सुबह शाम तवज्जो से और बहुत ध्यान से, यकीन की कैफियत से, और सुबह शाम एक तस्बीह पढ़ें, रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फकीर, ये सुबह शाम पढ़ें। फिर बाद में लोग शामिल होते हैं, पूरी दुनिया हमारे साथ है, फरिश्ते तो हमारे साथ हैं, मेरे आका के फरमान के मुताबिक जिक्र की मजालिस में फरिश्ते जमा होते हैं, अल्लाह जाने जिन्नात भी होंगे, और फिर ये मजमा सारा मिल के सूरत कुल हो वल्लाह पढ़ेगा। सोचे फिर सैकड़ों होगा, हजारों होगा या लाखों होगा। ये लाखों का कमाल है, मैं सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हो वल्लाह का कमाल बता रहा हूं। पहला कमाल क्या बताया? जो बंदा 2 तस्बीह सूरत कुल हो वल्लाह पढ़ेगा, अल्लाह 300 गजब के दरवाजे उससे बंद कर दे। बाज़ औक़ात बंदे के ऊपर ऐसा गजब होता है, आसमान से बलाएं उठती हैं, आफात होती हैं, अल्लाह पाक का गजब उस बंदे पे आता है। क्यों? उसके साथ कोई गुनाह, कोई नाफरमानी, कोई बदकारी, किसी का दिल दुखाना, किसी को तकलीफ देना, हत्ता कि काफिर तक को तकलीफ देना। या काफिर तो काफिर, एक बहुत बड़ा आदमी था, जब मर्सिडीज गाड़ी हमारे इस एरिया में नई आई थी, उसके पास मर्सिडीज गाड़ी थी, उसका लंदन में बहुत बड़ा कारोबार था। अपने बाग में गया, फसलों में गया तो सांप था, उसने सांप को थोड़ा सा मार के कहा, इसको ऐसे नहीं करो, इसके इर्द गिर्द लकड़ियां रखो और इसको जलाओ जिंदा।
सांप के साथ ये किया। सांप तड़पता रहा, लकड़ियां बढ़ाता रहा, उसको जिंदा जला दिया। कुदरत का निजाम कोई ऐसा चला, उसने चाबी घुमाई, उससे स्पार्किंग हुई, उससे कोई आग लगी, आग चली पेट्रोल की टैंकी पे और उधर से लाख हो गई गाड़ी और गाड़ी के अंदर खुद जल के मर गया। मेरे रब को तो ये निजाम भी, अल्लाह कहता है सांप मार ना छोड़, पर ऐसी जरब से मार उसे तड़पा ना। तू ज़बा कर जानवर, पर ऐसी छुरी से कर जो तेज हो, उसको तकलीफ ना दे, उसको तकलीफ ना दे। क्या पता मैंने जिंदगी में कौन सा ऐसा अमल किया हो, या बाज़ वक़्त मैं नहीं, मेरे पीछे कोई नस्लें ऐसी थीं, मेरी जिंदगी में मेरे बड़ों में कोई जालिम था या कोई ऐसा शख्स था जिसके साथ बद्दुआएं ताक़ुब कर रही हैं। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं, आज फिर दोहरा रहा हूं, दुआएं ताक़ुब करती हैं, पीछा करती हैं। आपने सुना होगा इस बंदे को किसी की दुआ है, इस खानदान को किसी की दुआ है, इस फैमिली को किसी की दुआ है। कहते हैं दुआएं इसका पीछा छोड़ गई, या इसके साथ दुआएं हैं। दुआएं ताक़ुब करती हैं, पीछा करती हैं, और बद्दुआएं भी पीछा करती हैं, ताक़ुब करती हैं। किसी की बद्दुआ, किसी की मैं जो सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ता है, 2 तस्वीर रोजाना, 300 गजब के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। वो गजब किसी भी शक्ल में उस पे आए, माल छिन जाए, दौलत छिन जाए, हुस्न छिन जाए, ओहदा छिन जाए, इज्जत छिन जाए, औलाद छिन जाए, नेमतें छिन जाए। नेमतों का जवाल आ जाए, किसी भी शक्ल में गजब आए, तो 2 तस्बीह सूरत कुल हु अल्लाह पढ़ने वाले पे अल्लाह पाक क्या करता है, नेमत अता शफकत, अल्लाह 300 गजब के दरवाजे उसके ऊपर बंद कर देते हैं। कहो सुभान अल्लाह। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हु अल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। और एक दरवाजा ही हमारे लिए काफी है, उस करीम का तो एक दरवाजा क्या, एक जर्रा ही मिल जाए। मैं कब्रिस्तान में खड़ा था तो एक नात खान एक नात कह रहा था, मुझे पता नहीं उसके बोल क्यों नहीं बोलते। उसने ना अपनी नात में एक लफ्ज कहा, एक कतरा जो बख्शे मैनू काम बन जाता ही मेरा मौला, जो एक कतरा भी मुझे बख्श दे मेरा तो काम बन जाएगा। चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, चश्मे फैज से गर एक इशारा हो जाए, लुत्फो आपका और काम हमारा हो जाए। आपकी शफकत होगी और हमारा काम हो जाएगा, लुत्फो आपका और काम हमारा हो जाए। मैं जो 2 तस्बीह पढ़ेगा, अल्लाह पाक 200-300 रहमत के दरवाजे उसको खोल देंगे। तो एक दरवाजा ही हमारी खुल जाए, अल्लाह कहता है नहीं, तुम्हारी औकात, तुम्हारी हैसियत थोड़ी, मेरा मकाम, मेरी अजमत बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। सैयदा फातिमा तशरीफ ले गई अब्बा के पास, अब्बा थक जाती हूँ, खिदमत है। बेटी तुझे ना दे दूं, ना दे दूं, एक तोहफा ना दे दूं? कौन सा तोहफा दिया? सुभान अल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। तस्बीहात फातिमा वाली रिवायत सच्ची है, एक ये रिवायत भी है। बेटी ये ना दे, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, 5 चीजें, अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। इसके फायदे कभी बताऊंगा, मुझे याद दिलाएगा। इसके ऊपर मेरे इतने फायदे मैंने इसके देखे हैं, इस पे तो पूरा दर्स होगा, ये लिख लेना, कभी याद दिला देना, अचानक याद आए। 300 रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उसे गैब से रिस्क अता फरमाए। 300 रिस्क के दरवाजे खुले, अल्लाहु अकबर, 300 रिस्क के दरवाजे खुले। कितने कितने? सुभान, रिस्क के दरवाजे, रिस्क के दरवाजे खुले। आहा, मैं एक दफा चंद सहाबा बैठे थे और एक तस्बीह कर रहे थे, गुठलियों के ऊपर, कोई उंगलियों के ऊपर। अदाली तशरीफ लाए, तो मैं क्या पढ़ रहे हो? कहा सूरत इखलास पढ़ रहे हैं। कहा किस लिए पढ़ रहे हो? कहा इसलिए कि अल्लाह हम पे वुसअत कर दे, वुसअत यानी रिस्क के दरवाजे खोलते, अल्लाह हमें वुसअत कर दे। पर मैं भी यही पढ़ता आया था, और मिल बैठ के पढ़ते हैं। फिर सारे पढ़ने बैठ गए और थोड़ी देर के बाद सब ने उसका हैरत अंगेज करिश्मा देखा, सबके लिए रिस्क के दरवाजे खोल गए। किसी के घर में 7 दिन का फाका है, किसी घर में 3 दिन का फाका है, किसी घर में कितना फाका था, सबके लिए वुसअत के दरवाजे खुल गए। 300 रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। और चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा, और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के लदुन्नी इल्म,
वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके? बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से, और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से, असल समझ अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। वह अक़साहुम अली, आपके हर खुतबे में हजरत अली की काजी और कुज़ा, चीफ जस्टिस का ऐलान होता है, वो 1 मिनट में ऐसे उकते हल कर देते थे। हाँ, हल्लक उमर फरमाते मैं हलाक हो जाता मेरे साथ अगर अली ना होते। अब फिर इसका फायदा कौन है? जो बंदा कितनी तस्वीर पढ़ेगा किस चीज की, कितना आसान है। अच्छा, इसके बड़े बड़े चिल्ले नहीं बता रहा मैं, बड़े बड़े चिल्ले। मुझे एक दफा एक बंदा कहने लगा, उच्च शरीफ में एक चाहे माकूस है, आप ऊपर से बंद हो गया औलिया, कहने लगे इसके साथ कच्ची तंद के साथ कच्चे धागे के साथ बाबा जी उल्टे लटका करते थे। पता नहीं, मैं नहीं टूटता होगा बाबा जी का वजन। कच्चे धागे के साथ बाबा जी उल्टा लटक के चिल्ला करते थे। असल में ये सारी बातें इसलिए हैं कुर्बानी से कोई अमल करते थे। असल ये है कि कुर्बानी से, नफ्स के मुजाहिदे से, वल्लजीना जहादू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, मुजाहिदे से। तो अल्लाह पाक जल्ल शानु बगैर मेहनत के अपने इल्म में से इल्म देंगे, अपने हिल्म सबर में से सबर देंगे, और अपनी समझ में से समझ देंगे। और 5वां फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 कितना? जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और आज जो आप पढ़ रहे हैं सूरत इखलास की दूसरी जुमेरात है, और ये 11 जुमेरातों का हर साल का अमल होता है। आप कितने खुशकिस्मत हैं, कितने नसीबों वाले हैं। मैं देखा 9-9 घंटे, 12-12 घंटे, 16-16 घंटे के लोग सफर करके इन जुमेरातों को नहीं छोड़ते, और रब उन्हें देता है, वो देता है। देखे ना, बगैर मेहनत के, मेहनत करते करते सारी जिंदगी हड्डियां गल गई। एक बंदे का मैंने नाम सुना, उसके नाम के साथ हड भन, उसने अपने हड्डियां भी तोड़ दी, जला दी, इतनी मेहनत की। एक बंदे का नाम मैंने सुना, उसका नाम कुछ और था, उसके नाम के साथ लोग उसको खच्चर कहते थे, इतनी मेहनत की जितनी खच्चर मेहनत करता है, इतनी मेहनत की। पर याद रखिएगा, मेहनत शर्त है, पर जरूरी नहीं कि मेहनत पे फैसले हो कि मेहनत करने वाले को हम बेबहा देंगे, नहीं, उसकी अता पे है, उसकी अता पे है, उसकी फरमाया कि इसका जो चौथा फायदा है, बगैर मेहनत के अपने इल्म में से इल्म दूंगा, अपने हिल्म में से हिल्म दूंगा, और अपनी समझ में से समझ दूंगा। और इसका 5वां फायदा है 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। और इसका 6ठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। मैं जो बंदा 2 नफिल पढ़े, हर रकत में 52 दफा सूरत इखलास पढ़े, और सलाम फेर के दुआ दरूद शरीफ पढ़े, और इसका सवाब बदरी सहाबा को पहुंचाए, 313 जो बदरी सहाबा हैं पहुंचाए। हम हर जुमेरात को महफिल में बदरी सहाबा पढ़ते हैं, अभी भी ये किताबें तैयार पड़ी हैं, बदरी सहाबा पढ़ते हैं, बदरी सहाबा, फिर इनके वसीले से दुआ मांगे, जो मांगते अल्लाह देता है। 2 नफिल फिर सुन लें, पढ़े हर रकत में सूरत फातिहा के बाद 52 दफा सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े, और इस तरह 2 रकत पढ़े, सलाम दरूद शरीफ पढ़े, और फिर इसका सवाब असहाबे बदरीन, बदरी सहाबा को हदिया करे, उनकी रूह के वसीले से दुआ करे। और मैं उस दुआ की ताकत यह है कि अल्लाह इसके काम बनाते हैं। क्यों? बदरी सहाबा वो हस्ती हैं जिनमें आले रसूल भी हैं बदर में, असहाबे रसूल भी हैं बदर में, वो हस्तियां हैं जो सारी कायनात के जितने भी वली जमा हो जाएं, उन एक में से एक का मुकाबला नहीं कर सकते। वो हस्ती हैं, वो हस्ती। तो इसका 6ठा फायदा है कि 50 साल के गुनाह माफ होंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। कितने? 20 महल, और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद, हकीक, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। कितनी? 2000 रकात नफिल। अब पढ़ के देखें, पढ़ के देख लें। 20 तरावी पढ़ते हैं, चेल कंडा एक में देख,
कमर कहती है कि क्या है 20 तरावी और 2000 रकात नफिल और सवाब किसका क्या है? ये 2 तस्बीह तो इखलास पड़ेगा। और आखिरी नवा फायदा, हा आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया, आखिरी फायदा कमाल फायदा। हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा, नूर के मोतियों की लड़ी बन गई। आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तो कौन है? का याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं बोला, मैं तुझे नहीं। मजाक मजाक में खाना खराबा कह जाते हैं। ये तो बड़ा खतरनाक जुमला है। खाना ही खराब हो गया, बाकी बचा क्या? खारी बचाना क्या? खारी ना बचा तो बाकी क्या बचा? और कहते हैं लड़ाई झगड़े घर से खत्म होते हैं, घर आबाद होता है, जिंदगी शाद होती है, वो बाम मुराद होता है।